અને એની અંદર પરિવાર દ્વારા વિનંતી કરતા સરસ્વતી લબ્ધ પ્રસાદ પદ્મભૂષણ વિભૂષિત પરમ પૂજ્ય આચાર્ય દેવેશ શ્રીમદ વિજય રત્ન સુંદર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ આદિ ઠાણાની પાવનકારી નિશ્રા આપણા શ્રી સંઘને મળી ભાગ્યશાળીઓ. સુંદર મજાનો માહોલ છે. આજનું વ્યાખ્યાન અહીંયા જ રહેશે અને સુંદર મજાનો ટોપિક ભવે ભવે તુમ ચલણાણમ નો લઈ અને ગુરુદેવ આપણને સુંદર મજાના ભાવોમાં લઈ જશે. આગળના પ્રોગ્રામની 1 મિનિટ માટે જાહેરાત કરી લઉં છું, સાંભળી લેજો ભાગ્યશાળીઓ. આવતીકાલના પ્રોગ્રામની અને આજના પ્રોગ્રામની જાહેરાત કરું છું, સાંભળજો પુણ્યશાળીઓ. આજે પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતનું વ્યાખ્યાન અહીંયા પૂર્ણ થયા બાદ બપોરે કલ્પતરુ વિયંટામાં સુંદર મજાના 10 દિક્પાલ પૂજન, નવગ્રહ પાટલા પૂજન વગેરેનું વિધિ વિધાન પંડિત વય શ્રી પારસભાઈ સર કરાવશે. સંગીતમાં તો સુંદર મજાના સાથ અને સહકાર આજે આપણને મંથનભાઈનો મળવાનો છે. મંથનભાઈ પૂરો દિવસ આજે આપણી સાથે છે. રાતની પ્રભુ ભક્તિ, આજે રાતની પ્રભુ ભક્તિ જિનાલયની અંદર મંથનભાઈ બહુ સુંદર રીતે કરાવે છે. હમણાં જ આપણે થોડા દિવસ પહેલા જ એમની ભક્તિ માણી છે, બહુ આનંદ આવે છે. એવા મંથનભાઈને આજે આપણે રાત્રે જિનાલયની અંદર સાંભળશું ભાગ્યશાળીઓ. આજની ભક્તિ જિનાલયની અંદર એ ખાસ ધ્યાનમાં લેજો. આજની ભક્તિ રાત્રિ પ્રભુ ભક્તિ આપણા શંખેશ્વર પાર્શના જિનાલયની અંદર એ ધ્યાનમાં લેજો પુણ્યશાળીઓ. ગુરુજી વધારી રહ્યા છે, તાળીના તાલ સાથે સ્વાગત. જય હો. ગુરુવંદન. ઈચ્છામી ખમાસમણો વંદ્યુમ જાવણીચાય નિસ્સિહાય મથ એણ વંદામી. ઈચ્છામી ખમાસમણો વંદ્યુમ જાવણીચાય નિસ્સિહાય મથ એણ વંદામી. ઈચ્છકાર સુહરાઈ સુખ તપ શરીર નિરાબાધ સુખ સંજમ જાત્રા નિર્વહો છોજી. સ્વામી સાતા છે જી, ભાત પાણીનો લાભ દેશોજી. ઈચ્છામી ખમાસમણો વંદ્યુમ જાવણીચાય નિસ્સિહાય મથ એણ વંદામી. ઈચ્છા કારણ સંધિસ ભગવાન અભુઠ્યમી અભ્યંતર રાયમ ખામેવ ઈચ્છમ ખામે મી રાયમ. મિચ્છામી દુક્કડમ
इच्छामी खमासमणो वंद्युम जावणी जय निसिहाय मत एण वंदामी सुक्षता भगवान इच्छामी खमासमणो वंद्युम जावणी जय निसिहाय मत एण वंदामी छा कारण संदिसा भगवंत वायणा संदिसाओ इच्छम इच्छामी खमासमणो वंद्युम जावणी जय निसिहाय मत एण वंदामी छा कारण संदिसा भगवंत वायणा लेशु इच्छम इच्छामी खमासमणो वंद्युम जावणी जय निसिहाय मत एण वंदामी इच्छकारी भगवान पसाय करी वायणा प्रसाद करावशो जी हाथ जोड़ो पुण्यशाळीओ नमो आर्याणं नमो विद्यायाणं नमो लोये सम्पदाहुणं एषो पञ्चानमुक्कारो स्वभावपणासनो मङ्गलानन्द समेशिं पटमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वार रागादिवैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महो भयवो जय स्वाणं भवो तित्तराणो अपचिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमः श्रिय पाउमा वही पमोनि सेमी अपाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेऊ श्रीपास जगनाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः બેસી જાઓ પુણ્યશાળીઓ સુંદર મજાનો મહોત્સવ અને પાવનકારી નિશ્રા અદ્ભુત આપણને પ્રદાન થઈ છે કહ્યું છે ભાગ્યશાળીઓ કે જે વીણ નવી જગ ટકે જે વીણ નવી જગ ટકે નવી શ્રુત ટકે કે પરંપરા નહીં જે વીણ ધર્મ ક્રિયા જીન વાણીના મીઠા જરા એ શ્રમણને અહોભાવથી ભાવે કરું હું વંદના પ્રભુના શાસનની અદ્ભુત એક આ વિભૂતિ જે આપણને સૌને મળી છે અને આજે રૂપાબેન વસંતભાઈ શાહ પરિવારના પાવનકારી વિનંતીને ધ્યાનમાં લઈ અને પૂજ્ય ગુરુ ભગવંત વિમલનાથ દાદાની પાવનકારી પુનઃ પ્રતિષ્ઠાના મંગલ અવસરે શ્રી સંઘની અંદર પદાર્પણ થયા ગુરુદેવના શ્રમણ શ્રમણી ભગવંતો આપણા ઉપર જબરજસ્ત ઉપકાર કરી રહ્યા છે અને એટલે જ કહીએ ભાગ્યશાળીઓ કે આપણા માટે આ સુંદર મજાની એક આલંબન છે આપણને અને આપણને તારવા માટે પૂજ્ય ગુરુ ભગવંત કાલે વ્યાખ્યાની અંદર કેટલી કરુણા એમના હૃદયમાંથી નીતરી રહી હતી ભલે હસતા મોઢે આપણને કહી રહ્યા હતા પણ આપણા આત્મકલ્યાણની વેદના એમના હૃદયની અંદર હતી એવા પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતની વંદના આજે બરાબર 2 વાગે વિએન્ટા કલ્પતરુ વિએન્ટા B65માં 10 દિક્પાલ પૂજન નવગ્રહ પાટલા પૂજન 1 વાગે જી 1 વાગે બરાબર વિધિ વિધાન ચાલુ થશે વિધિકાર શ્રી પારસભાઈ સર પંડિતવર્ય અને મંથનભાઈ સંગીતની અંદર તો સુંદર મજાનો સુમેળ છે સકળ સંઘે ખાસ લાભ લેવા માટે વિનંતી રાત્રે બરાબર 8 કલાકે જિનાલયની અંદર પ્રભુ ભક્તિ મંથનભાઈ સુંદર મજાના ભાવોમાં આપણને લઈ જશે સકળ સંઘે એની અંદર પણ પધારવા માટે ખાસ વિનંતી આવતીકાલે મહામંગલકારી દિવસ એટલે પ્રતિષ્ઠાનો દિવસ ભાગ્યશાળીઓ બરાબર 9 થી 10 આવતીકાલનું આ જાહેરાત સાંભળજો જરા આવતીકાલનું વ્યાખ્યાન કલ્પતરુ વિએન્ટા P3 ની અંદર રહેશે ગુરુદેવનું કનકશ્રી આજ અને ગઈકાલ માટે હતો આવતીકાલે કલ્પતરુ વિએન્ટા B3 ની અંદર પૂજ્ય ગુરુ ભગવંત P3 ની અંદર પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતનું પ્રવચન રહેશે ત્યારબાદ બરાબર 10:30 કલાકે 10:30 થી 12 વાગ્યા સુધીના મહામંગલકારી મુહૂર્તની અંદર પાવનકારી પ્રતિષ્ઠાનું વિધિ વિધાન પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતના હાથે તેમજ પારેશભાઈ પંડિતવર્યના હાથે થશે અને આવતીકાલે સંગીતની અંદર સુંદર મજાના તમને બધાને આપણે બધાને ભાવોમાં જોડવામાં જૈનમભાઈ વારિયા
વારે સવારથી રાત સુધી જૈનમભાઈ આપણી સાથે છે અને રાતની પ્રભુ ભક્તિ પણ કલ્પતરુ વિએન્ટાની અંદર જ રાત્રે ભક્તિ પણ છે. તો એની અંદર સકળ સંઘે ખાસ પધારવા માટે વિનંતી. અતુલભાઈ સીએ આપણા કાલે પણ એ પણ તમને સંવેદનાની અંદર લઈ જશે. આ સુંદર મજાના મહોત્સવમાં 3 દિવસ શ્રી સંઘની અંદર આંબિલ ખાતાનો લાભ પુણ્યશાળી પરિવારે લીધેલ છે. આંબિલ ખરીદનાર તપસ્વીઓનું પણ વિશિષ્ટ બહુમાન કરવામાં આવશે. તો સકળ સંઘે ખાસ જોડાવા માટે વિનંતી. સકળ સંઘનું સ્વામી વાત્સલ્ય, હાજી, પ્રતિષ્ઠાના પાવન અવસરે સકળ સંઘનું સ્વામી વાત્સલ્ય લાભાર્થી 3 દિવસના રૂપાબેન વસંતભાઈ શાહ પરિવાર છે. સ્વામી વાત્સલ્ય આપણા શ્રી શંખેશ્વર પાર્શનાથ જિનાલયના ઉપાશ્રયમાં વગેરે છે. તો સકળ સંઘે ખાસ ઉલ્લાસભેર આ બધી જ ક્રિયામાં લાભ લેવા માટે વિનંતી. ખાસ આપણે બધા જ થોડી વાર માટે ભાવોમાં જવું છે. આ સુંદર મજાનું લીલી શાખાઓ જે આપણને દેખાઈ રહી છે એની પાછળ કોણ છે? તો ભુવન ભાનુસુરી દાદા છે. એ ભુવન ભાનુસુરી દાદાનું ઘટાદાર વૃક્ષ આજે સુંદર મજાની જીન શાસનની પ્રભાવના કરી રહ્યું છે. હું મંથનભાઈને વિનંતી કરીશ કે ગુરુદેવને 2 મિનિટ માટે આપણે યાદ કરીએ. જી, સ્વામી વાત્સલ્યમાં ટિફિનની વ્યવસ્થા પણ છે. તો પુણ્યશાળીલા બાપા માટે વિનંતી. હાજી, કરી શકે ના. જય હો, તાલીના તાલ સાથે કરી શકે ના કોઈ તારા, કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણોના સરવરા, સુધીર શ્રી ભુવન ભાવના સુધીર શ્રી ભુવન ભાવના કેમ ભૂલીશું તુજને, ઓ કેમ ભૂલીશું તુજને, દિન શાસન ના રખવાડા, સુધીર શ્રી ભુવન ભાવના જવાડા, સુધીર શ્રી ભુવન ભાવના જવાડા. જગદગુરુ તે જન્મ ધર્યો ધરતી પર કરવા જગ ઉદ્ધાર, અંધારે અથડાતા યુવાનો ઘણો થયો ધોકાર. સિંહ જેવી ઝીણી ડિગ્રી લીધી પરદેશમાં, માત તાતને બાંધવ બેની હરખ્યા વેશમાં. શાહ કુટુંબનો આકુળ દીપક વિદ્યાધર થઈ જળશે, ચિમન ભાઈને ભૂરી બેનનું નામ બધે ઉજવળ કરશે. ખબર નહોતી કાંતિ માટે લખ્યું વિધિ જુદું વિધાન, માનવ નહીં પણ માનવ કરશે આ તો જગત જ્ઞાન. ગાડી મોટર પ્લેન નહીં પણ ઓ ગાડી મોટર પ્લેન નહીં કરશે આ પગપાળા, યુગો સુધી હર્ષે ભુવન ભાનુના અજવાળા, યુગો સુધી હર્ષે ભુવન ભાનુના અજવાળા, ભુવન ભાનુના અજવાળા, ભુવન ભાનુના અજવાળા, ભુવન ભાનુના અજવાળા, ભુવન ભાનુના અજવાળા. થોડા નજીક આવી જાઓ. જગ્યાની મર્યાદા છે. આવો થોડા નજીક. બને એટલા જલ્દીથી આગળ આવી જવા માટે વિનંતી. किसी श्रीमंत के घर में 2 पिल्ले का जन्म हुआ. पिल्ले ने गलुड़ियों. एक कमजोर था, एक बहुत हेल्दी था. जिसके घर में जन्म हुआ वो लेकर के एक संत के पास गया और संत को पूछा कि आप बता पाएंगे कि इसमें लंबा कौन जिएगा. एक बहुत कमजोर था, एक बिल्कुल हेल्दी था, जबरदस्त. और संत ने इतना ही कहा, जिनको तू संभालेगा वो ज्यादा जिएगा. मैं और आप परमात्मा के पास जाकर के पूछते कि भगवान मेरे में गुण जो भी है वो कमजोर है और मेरे दोष बहुत बहादुर है. भक्ति मेरी अब इसी जन्म में शायद शुरू हुई, वासना जन्म जन्म की है. क्षमा इसी जन्म में मैंने शुरू की, क्रोध जन्म जन्म का है. हेल्दी मेरा दोष है और गुण मेरे कमजोर है. भगवान आप बता पाएंगे
लंबा कौन जिएगा, गुण या दोष। और परमात्मा ने कहा तू जिसको संभाल पाएगा वो लंबा जिएगा। आज के प्रवचन में एक बहुत गंभीरता से कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। मुझे एक छोटा सा प्रश्न का जवाब आपसे चाहिए, फिर कहना चाहता हूं। मेरे में वहां पिल्ला अलग था, यहां मेरे में सब है। गंगा भी मेरे में, गटर भी मेरे में, कांच के टुकड़े भी मेरे में, डायमंड भी मेरे में, जंगल भी मेरे में, नंदन वन भी मेरे में, क्रोध भी मेरे में, क्षमा भी मेरे। एक प्रश्न का जवाब दो, सामने वाला जब आपको उकसाता है, पहला प्रयोग आप किसका करेंगे, क्रोध का या क्षमा का? ऑन द वेरी फर्स्ट क्रोध, बस ये लंबा जिएगा। क्रोध के सामने क्रोध वो रिएक्शन, और क्रोध के सामने प्रेम वो रिवोल्यूशन। इन विच वी आर इंटरेस्टेड इन रिएक्शन की रिवोल्यूशन। संसार बोलता है रिएक्शन, धर्म बोलता है रिवोल्यूशन। नो डाउट मेरे में गुण है मगर बहुत कमजोर है। एक धक्का मार दो टूट जाएगा। मगर यदि मैं उनको संभाल पाता हूं, इतना पुष्टि इतना मजबूत बन सकता है और वो चला जाएगा। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी मानसिकता क्या, हम किसको पुष्ट करना चाहते, दोष को या गुण को? पहले मेरी मेंटालिटी बता दो। ये बोलो ही मत कि गुरुदेव क्रोध सताता है, नथिंग एल्स। इन विच आई एम इंटरेस्टेड, मेरी चॉइस क्या, मुझे क्या पसंद है, मैं प्रेम किसको करना चाहता हूं, क्रोध को कि क्षमा को? अब बता पाएंगे, आनंद आएगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, दोनों पिल्ले मेरे में ही है। माने जिसको मैं बाहर लाता हूं वो जीत जाएगा। आप बता पाएंगे? नहीं बितौल, अभी इतने सालों के बाद एक बात बताऊं, ये तेरे प्रश्न के सामने में जवाब। अब हमारी भाषा बदल दो। सच बोलो, क्रोध हो जाता है कि क्रोध जानबूझ करके हम करते हैं? पहले नहीं, मजाक मत करना, हम करते कि हो जाता है? हाँ? करके दिखाओ, अभी दिखाओ। सच बोलो, किसने बोला क्रोध हो जाता है? हाँ? ना भैया, मगर वो तुम लाते हो ना। मेरे सामने क्रोध, महावीर सामने क्रोध किया, चंडघुस ने रिएक्शन नहीं आया। महावीर में भी क्रोध था, क्योंकि वो टाइम केवल नन की प्राप्ति महावीर को नहीं हुई थी। महावीर भी चंडघुसी के क्रोध का जवाब क्रोध से दे सकते थे, अनंत बली थे। महावीर ने क्रोध का जवाब प्रेम से दिया, हम क्रोध का जवाब क्रोध से देते। फॉरवर्ड, महावीर को रस था प्रेम में, हमें रस है क्रोध में। देयरफॉर वी आर गोइंग टू डू एंगर। चलो पहले ये बोलो, हम क्रोध करते कि होता है? आगे चलना, मुझे आगे चलना है। मगर अब एक बीजी बात कह दूं, सच बोलो, रास्ते में चलते चलते आपका पैर कांटे पर गया, बराबर है? कांटो भाग्यो ने, सच बोलो, कांटो भाग्यो कि कांटा ने तमे भाग्या? नहीं, जल्दी बोलो, है? क्या थी कांटो? कांटो तो एमने पड़े तो तमे मूक्यो पग? कांटो भाग्यो कि कांटा ने तमे भाग्या? શા માટે ભાગ્યા? એટલે ભૂલ તો તમારી ને, કાંટાને કાઢ દો નહીં ને તો ક્રોધ તમે કર્યો કે ક્રોધ થઈ ગયો? શું કામ કર્યો? कम से कम पहला तो कबूल करो कि गुरुदेव मैं जानबूझ करके क्रोध करता हूं, मुझे क्रोध करने के लिए कोई मजबूर नहीं करता। नो वन। इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे रस्ते में क्रोध कर ही नहीं सकता।
कितने लोग मेरे पास आते, गुरुदेव क्रोध हो जाता है, कब तक ये अपने का बचाव करेंगे, कब तक? आप ये बोलो गुरुदेव मैं जानबूझ करके क्रोध करता हूं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, मुझे लगता है क्रोध इफेक्टिव है, इंप्रेसिव है, मेरा काम हो जाएगा। એટલા માટે એક વાત કરી દઉં, કર્મ ગ્રંથની, કર્મ બંધાતા નથી, આપણે જ બાંધીએ છીએ। जो भी कर्म ग्रंथ के क्षेत्र में आगे चला है उनको पता होना चाहिए कि प्रति समय कर्म बंध होता नहीं है, कर्म बंध हम जानबूझ करके करते हैं। यदि प्रति समय कर्म का बंध होता तो केवल नानी सिद्ध भगवंतों की होना चाहिए, नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। हम कर्म बंध करते हैं, होता नहीं है। आमा तमारू हमણાં पल्ले नहीं पड़े। हाँ, चलो आगे। સુઈ જાવ ત્યારે હોવાનું તો કરો છો ને, તમે સુઈ જાવ ત્યારે કાંઈ નથી કરતા એમ નહીં, દર્શનાભરણનો ઉદય છે, કર્મનો, નિદ્રા, બધા તમે શરીર લઈને બેઠા છો એટલે બંધાય। સિદ્ધ ભગવંતો આગળ શરીર અને મન નથી, માટે કર્મ બંધ નથી। પ્રસમરતિ પ્રકરણમાં ઉમાસ્વતી મારા સ્પષ્ટ શબ્દ લાગે, शरीर मन हो तो ज कर्म बंधाय, बाकी कर्म न बंधाय। मने खाली एटलो जवाब आपो, अंपायर आंगणी ऊंची करे त्यारे बेट्समेन आउट थाय के बेट्समेन आउट थाय त्यारे अंपायर आंगणी ऊंची करे? એટલે અંપાયર તો કઈ લેવા દેવા નથી ને, તમે જો 4 મારો તો 4 આપે, બરાબર છે ને? એટલે અંપાયર આઉટ નથી આપતો, બેટ્સમેન આઉટ થાય છે, કર્મ બંધાતા નથી, આપણે જ બાંધીએ છીએ। अब इनको लेकर के आज 5 महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। यदि भगवान से नाता जोड़ना चाहता हूं, भवे भवे तुम चलानम आज के प्रवचन का सब्जेक्ट है। भगवान जन्म 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 आप मिलो। एक रिपीट करूं, एक भी भव में मुझे संसार न मिले ये डिमांड नहीं है, भव भव शासन मिले ये डिमांड है। भगवान मुझे संसार नहीं चाहिए, एक भी भव में अगले जन्म में मेरा संसार नहीं चाहिए ये डिमांड नहीं है। जब तक मेरी मुक्ति नहीं होती है भगवान भव 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 आपका शासन मिले। और यदि ये परमात्मा का शासन पाना है, इनकी 5 बात आपसे करना चाहूंगा। यदि 100% मुझे प्रभु चाहिए, भगवान का शासन चाहिए, कहां से शुरू करूं गुरुदेव? यहां से शुरू करो। परमात्मा को पाने के लिए शुरुआत तुम प्रेम से करो। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लव। और 5 स्टेप परमात्मा के शासन को पाने के लिए प्रेम का 5 स्टेप। नंबर 1, गुरुदेव मेरा मिशन प्रेम है। व्हाट मीन मिशन? मिशन એટલે શું? बस बराबर। हम विचार करके आए तो अल्टीमेट के गोल था कि अशोक चक्कर जाना है, माने अंतिम यहाँ स्टॉप किया। आप इतना बोलो गुरुदेव मेरा मिशन परमात्मा नहीं है, अब मेरा मिशन प्रेम है। जहां भी जो भी जिसके भी साथ में मिलूंगा उनके साथ मेरा 100% प्रेम का व्यवहार रहेगा। चाहे रिक्शा वाला, चाहे डोरी वाला, चाहे कोई नौकर घाटी, कोई भी, चाहे मेरा दुश्मन हो, मेरा मिशन प्रेम रहेगा। यू आर एग्रीड? सामने वाले ने क्या किया नहीं, मेरा मिशन प्रेम रहेगा गुरुदेव। आपके पास कोई भी दलील तो मुझे बता देना, मेरा मिशन प्रेम। परमात्मा की पूजा क्यों, नौकर वाली क्यों, सामाई क्यों, आंबिल क्यों, एकासन क्यों, घर में भगवान की प्रतिष्ठा क्यों? प्रेम की प्रतिष्ठा हो जाए इसलिए। क्या है? चाहे वो उनका कितना भी विजन, वो चाहे कितना भी मिशन लेके बैठा हूं, एक बात कही दू तुमने, चंडो कौशिक ने पण महावीर मળી શકે છે, પણ महावीर મળ્યા પછી ચંડો કૌશિક રહી શકાતું નથી। चंड कौशिक को भी महावीर मिल सकते। महावीर की हत्या करने वाला चंड कौशिक, वो हत्या करने वाले को महावीर ने 8वें देवलोक में भेज दिया। मिशन था। चंड कौशिक तू क्या करता है, नहीं मैं क्या करने वाला हूं समझ ले।
एक बात तो मैं दिल से कहना, इतने सालों के बाद, इतने प्रवचन के बाद, इतनी परमात्मा के दर्शन बंधन करने के बाद, अब एक मेंटालिटी निकाल दो, सामने वाले ने क्या किया, व्हाट आई हैव टू डू। आज का प्रवचन पूरा आप पर है। कुत्ते ने गाली दिया, हाथी ने वो किया, वो सब कुछ छोड़ दो। गुरुदेव इसने मेरा पेमेंट डुबा दिया होगा, तुझे क्या करना है। और मेरी बात मैं करूं, मैं पूरा का पूरा जीन शासन में इतना श्रुत अभ्यास किया नहीं, फिर भी एक बात करूं, मैंने जितने भी आगम भगवती परनौना लोक प्रकाश कुछ भी पढ़ा है, वहां एक बात आपको कहना, मैंने आज तक एक भी कोटेशन ऐसा नहीं पढ़ा है कि सामने वाले को क्या करना है, सब पढ़ा है तुझे क्या करना है। चलो अभी इस गोल को लेकर के मैं, मुझे क्या करना है, मेरा पेमेंट जानबूझ के जिसने डुबाया, मुझे क्या करना है। जानबूझ के चंडक उसने भगवान महावीर को हैरान किया, भगवान एक ही सोचा, उसने क्या किया नहीं, मुझे क्या करना है। अब बता तो मुझे आनंद आएगा, व्हाट आई हैव टू डू। चाहे मैं अष्टप्रकारी पूजा करूं, मैं चारित्र जीवन भी ले लूं, मेरा चारित्र जीवन भी फेल हो सकता है यदि मेरा मिशन ये नहीं है तो। आज इतनी अच्छी सभा के बीच में इतना छोटा सा प्रश्न, सामने वाले ने क्या किया नहीं, मुझे क्या करना है। Any doubt from you? नहीं बोलो। 5 स्टेप प्रेम का, चाहे मैं कितना भी प्रवचन करूं, चाहे कितना भी संयम का पालन करूं, ये मेरे में नहीं है तो मैं भी गया काम से। मेरे कपड़े रह जाएंगे, मेरी प्रभावते रह जाएगी, और मेरी आत्मा भी वहां ही जाएगी, संसार टिकेगा वहां। 1 point program, I have to give love to everyone in any situation. हाँ? मैं ना नहीं बोलता, डिफिकल्ट नहीं है, मैं नहीं बोलता डिफिकल्ट है, मगर पॉसिबल है। मैंने सरल काम नहीं है, डिफिकल्ट मत पॉसिबल, मैं कहा ना बोलता हूं। पहले ये बता दूं कि गुरुदेव मेरा मिशन 1 point प्रोग्राम प्रेम, और आपको एक आउटपुट बता दूं, प्रेम यदि मिशन होगा तो आपको एक चीज में स्पष्ट होना चाहिए, प्रेम पेन की ताकत देता है। ये आपने यदि किसी को प्रेम किया, पेन की ताकत, पेन माने पीड़ा, फरी मार कहूं, शक्ति आपे एનું નામ પુણ્ય છે, સહન શક્તિ આપે એનું નામ પ્રેમ છે। પીડા, ગુરુદેવ મારા પિતાજીને હું પ્રેમ કરું છું, એમના તરફથી જે પણ પીડા આવશે, એક્સેપ્ટ ઇટ। हाँ बोलो कि ना बोलो। यदि आप किसको भी प्रेम करना चाहते हो, कंपल्सरी पीड़ा, कंपल नॉट वॉलंटरी। आप जब भी बोलो गुरुदेव आई लव यू, पहले बोल दो गुरुदेव आई लव पेन, देन आई लव यू। पीड़ा पर प्यार किए बिना तुम गुरुदेव को भी प्यार नहीं कर पाएंगे, भगवान को भी नहीं कर पाएंगे, चीटी मकोड़े को भी तो नहीं कर पाएंगे। यहां बैठने वाले सब मुझे जवाब दो, आपकी ये तैयारी है पीड़ा और प्रेम, फिर प्रेम की बात। पहला आटलू करो ने तमे, अलग अलग नी चिंता न करो। खड़ी सागर, बुरु सागर, गांगड़ा सागर बधी एक ज छे यार। सच बोलो क्यों यहाँ पहले ही स्टेप में क्यों रुक गए?
પ્રેક્ટિકલ અમારે બધું જ શક્ય છે. નહીં આ તો પછી કોઈને પણ કોની મને તમારી પર પ્રેમ છે નહીં, બોલો જ નહીં. સોદાબાજી છે, बार्टर सिस्टम है. मैंने 100 रुपया लिया, सामने मैंने कपड़ा दिया, कोई ने किसी पर उपकार नहीं किया, 100 दिया, कपड़ा मिला. आपने किसको प्रेम किया, उसने आपको प्रेम दिया. ये प्रेम नहीं है, इट इज बार्टर सिस्टम. हमारे वहां हरिभद्र समाज इनको सज्जन की भूमिका नहीं थे, व्यापारी की भूमिका लगते, व्यापारी. और आपको तो मैं एक कठोर वाक्य और भी बोलूं, जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है, रिपीट, याद रखो, हरिभद्र समाज का कुलक का कोटेशन, जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो सिर्फ नौकर सेठ की आज्ञा का पालन करता है. तो आज्ञा पालन कैसे करना, गुरु बोले और आज्ञा का पालन नहीं, गुरु के इंगित को समझ के सिखा रहे वो शिष्य है. તમે સમજ્યા? ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરનારો શિષ્ય એ શિષ્ય નથી, નોકર છે. एक बॉस ने आज्ञा कर दी तो नौकर ने आज्ञा का पालन किया, क्या कोई कोई शिष्य थोड़ा है? बॉस था इसलिए आज्ञा कर दी, आज्ञा का पालन कर दिया. मैंने आपको बता दिया और आपने किया, वो आज्ञा का पालन नहीं है. आज्ञा का पालन है, शिष्यत्व नहीं है. ब्रह्म भाई, आप यदि मेरे पास आओ, एक थोड़ा चेक भी कर लूं. आप 1 लाख रुपया लेके आए और आपने बोला गुरुदेव 1 लाख आपके चरण में है. बोला मुझे, आपको भी मालूम है मुझे नहीं चाहिए, मगर आप बोले गुरुदेव जिन शासन के अनेक क्षेत्र है, आपको ठीक लगे वहाँ आप इनकी यूटिलिटी कर देना, बराबर है. अभी सच बोलो, मेरी ना होने के बावजूद आपने ठोस कर दिया, गुरुदेव आपकी जो भी इच्छा है, जिसको भी देना दे दो, लाख आपके चरण में. और तुमने लाख रुपया प्रमोद भाई रखा, और जिसके बाद तुम्हारा 1 करोड़ का पेमेंट डूबा है वो आया और मैंने कहा प्रमोद भाई इनको लाख दे दो. पहला लाख तो आपो पसी हो गया. ये तो बोलते हो, कोई देते बेते नहीं है. डिफिकल्ट नहीं, लगभग इम्पॉसिबल. તમે શું કહો, કદાચ આપો ને તમે શું કહો, સાહેબ મારા ગયા પછી કહો આ રામકોરે મારા જ ડબાડે છે એને આપું લાખ, સહેલું નથી. મિશન લવ પાણી ઉતારી નાખશે. और इसी चीज को लेकर के महापुरुष ने परमात्मा के स्तवन में एक पंक्ति लिखी है, तुम साथे जे प्रीतड़ी अति विषम खांडा था, धार तलवार नी सोहिली दोहिली 14वां चिंतनी चरण सेवा. भगवान प्रेम करना इतना आसान है क्या? तेरी अष्टप्रकारी पूजा करना आसान है, सब कुछ आसान है, प्रेम. नंबर 1 मिशन लव. एक मुनि दीक्षा लेता है तब से इनका मिशन लव होता है. एक भी पाप जिंदगी में करूंगा नहीं, और पाप नहीं करना है तो प्रेम करना ही पड़ेगा. जहां प्रेम होता है वहां पाप एब्सेंट नहीं जाता है. मैं जो बोलता हूं ऐसा प्रेम आपने पूरी जिंदगी में एक को भी किया तो बोलो. मैं आगे चलता हूं तो ओनली 1% इन योर लाइफ, गुरुदेव मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी पत्नी, या तो गुरुदेव आप, मैंने ऐसा प्रेम किया जो आप बोलते हो ऐसा. मैं नहीं बोलता हूं, आप खुद एक एड्रेस तय कर लो, नहीं किया तो अभी से तय कर लो. गुरुदेव फ्रॉम दिस प्रवचन बाहर निकलने के पहले आपको वादा देता हूं, एक एड्रेस मेरी जिंदगी में ऐसा है जिनको आप जो बोलते हो, भगवान में भी जिसको प्रेम कहते हैं, ऐसा प्रेम आज से स्टार्ट. नंबर 1 मिशन, नंबर 2 विजन. विजन का अर्थ क्या होता है? एक मारू विजन है, શું
फोकस, दैट मीन्स व्हाट मालूम है गुरुदेव? रियलिटी कोई भी हो, मैं पॉसिबिलिटी देखता हूँ, ये है विजन। रियलिटी पर से ऊपर उठ करके पॉसिबिलिटी तक जाना, ये है विजन। एक पत्थर को जब शिल्पी आत्मा लेता तो हम लगता है कि ये रियलिटी तो क्या था ना, ये बेकार पत्थर है। तो आपको मालूम नहीं, 400वीं किताब के विमोचन में नेमनाथ भगवान विराजमान थे। हम आमली में थे, अहमदाबाद में, और वो ब्लैक कलर का पत्थर जब आया, प्रमोद भाई देखने के बाद लगा कि देखने का मन हो, ऐसा ब्लैक कलर का पत्थर था। मगर शिल्पी तैयार होके बैठा था। हम मुनि भुगन सब, जब ये पता चला इस पत्थर में से भगवान हेमनाथ बाहर आने का प्रयोग ये शिल्पी कर रहा है, आज वो दिन याद आता है। आंख में से आंसू का पक्षाल होता था मेरी। प्रभु आप आएंगे इसमें से, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बनेगा। हम तो सोच भी नहीं सकते आप में से कैसे आएंगे। आंसू के साथ जब पहला उसने लगाया टाकरा, आपको मालूम नहीं हमारी एक्सप्रेशन क्या था। 27 रोज पर डे एक साधु का नंबर लगा दिया था। भगवान के प्रतिमा जिसमें से पैदा होने, वो पत्थर को टच करके संति कर्म की उज्जिंत सेल सिरे दिखा नाणम निसिया जैसा नेमनाथ दुकान की स्तवना एक साधु 27 बार अंगुनी करके रोज पत्थर पर टच। और जिस दिन नेमनाथ प्रभु बाहर पधारे, पागल बन गए थे। विजन, मैं आपको पूरा सच बोलो, मुझे गुरुदेव ने दीक्षा दी। रियलिटी देखी होती तो मुझे दीक्षा नहीं मिलती। विजन था, थोड़ा तैयार कर दूंगा, आगे निकाल दूंगा। प्रेम रियलिटी नहीं देखता है, विजन देखता है। सच बोलो, आपकी मानसिकता क्या? आप बता पाएंगे? मुझे आनंद आएगा। ओनली रियलिटी चेक करेंगे कि विजन भी चेक करेंगे। गुरुदेव चाहे कितना भी हराम करो, गुरुदेव भरोसा है अच्छा होगा। रिजेक्ट कर दे तो 1 मिनट में, विजन नहीं है तो रिजेक्ट कर। नहीं 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 नहीं, इनको छोड़ो, हराम खोरे होगा। मैं ना भी नहीं बोलता हूं, रियलिटी हमेशा बेकार हो सकती है। पॉसिबिलिटी आपकी मानसिकता बोलेंगे, मुझे आनंद आएगा। नो कमेंट प्लीज। मैं बोलता हूं भगवान की अष्टप्रकारी पूजा नहीं, सुवर्ण मंदिर बनाना भी फेल हो सकता है यदि हम यहां तक नहीं गए तो। मेरा चारित्र जीवन फेल हो सकता है यदि मैं इसमें कमजोर पड़ गया तो। चंडकोसी में ऐसा क्या था जो भगवान उसको प्रेम करे? रियलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी। और 8वें देवलोक में गया। आपकी मानसिकता क्या? सामयिक प्रतिक्रमण हमણાં बात नहीं करतो, हमણાં बात करजो। आवतीकाले भगवान पधारे છે। बरोड़ा में एक बहन आई थी मेरे पास। गुरुदेव एक बात बता दूं, मेरे पति का 50 लाख का पेमेंट अलग अलग पार्टी में रुका है। उसने गुरुदेव हमने सबको रोड पे लाके रख दिया है। मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम सब इतने बेकार बन चुके। गुरुदेव लगता है कि मेरे पति को मैंने कहा था कि जिसके पास आपका पेमेंट रुका है सबका मुझे नाम दे दो। मेरे पति ने कहा कि कुछ नहीं करना, अपने को आने वाला भी नहीं है, पुण्य कम है। अरे छोड़ो, मुझे कुछ नहीं करना, आप नाम तो दे दो। मगर बहन ने खुद ने बता दिया मुझे, गुरुदेव मैंने मेरे पति से नाम लिया।
मान लिया गुरुदेव आपके संसार में पैसे नहीं होंगे, मैं भी मानता हूं पैसे सब कुछ नहीं है। रिपीट करूं, पैसे सब कुछ नहीं है मगर बहुत कुछ है। हमारा संसार जीवन विदाउट मनी चल ही नहीं सकता। 50 लाख का पेमेंट, बड़ौदा के रोड पे घूम रहे गुरुदेव, यंग मेरी बेटी है, कहां जाएगी? आक्रोश। और गुरुदेव मैंने मेरे पति से एड्रेस सबका नाम मांग लिया। पति ने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं, किसी को फोन मत करना। फोन नहीं मांगती हूँ, नाम चाहिए मुझे। और गुरुदेव सबका नाम, वो कागज लेके आई थी मेरे पास। गुरुदेव मालूम है इस कागज को लेके मैं क्या करती हूँ? बहन बता सकते हो तो बताओ। गुरुदेव मेरे घर में मंदिर है, छोटा सा मंदिर, अंजन सला का नहीं, ऐसे ही मूर्ति है। रोज गुरुदेव वहां जाकर के इस कागज मूर्ति के सामने रहती हूँ और भगवान को विनती करती हूँ, सभी के खानदान को खत्म कर देना, इनकी धर्मपत्नी को वीडियो कर देना, इनके बेटे को कैंसर कर देना, इनका अकस्मात कर देना, तार तार मार दे सब। रोज गुरुदेव भगवान से विनती करता हूं, यदि तू अनंत शक्ति संपन्न है, इतना कर दे। ऐसे आक्रोशवाणी व्यक्ति को लेकर प्रमोद मन में क्या भाव है? मेरे पास आई ये कागज गुरुदेव, रोज 2 टाइम जाकर के परमात्मा को विनती करता, भगवान सबको खत्म कर देना जितना को खत्म कर दिया है। मगर एक रियलिटी के बाद भी पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ी, आंख में आंसू थे। आंसूनी मूड़ी पर केवड़दान मળી શકે છે। गौतम रोए तो केवलदान की प्राप्ति होगी। भरत चक्रवर्ती वाली साबुर में केवलदान रो एक बार। और ये कागज देकर के इनकी आंख में आंसू दे, गुरुदेव करूं तो भी क्या करूं, बिना पैसा चलता नहीं है। बहन चातुर्मास से प्रवचन सुनेंगे निश्चित, बहन विदाउट ब्रेक प्रवचन सुनना। और जब मेरा विहार हुआ तो तब आपके चेहरे पे मुस्कान थी। मालूम था पेमेंट आया होगा नहीं आया होगा, इनकी मुस्कान नहीं, मुस्कान अलग थी। गुरुदेव आप खुश हो जाएंगे इससे समाचार। मैं बोला बहन क्या हो गया? भगवान के सामने कागज रखने का बंद कर दिया। नहीं गुरुदेव, वो तो आपके प्रवचन कितने भी सुने, कागज आज भी रखती हूँ, मगर भगवान से विनती करता हूँ सबको सुखी कर देना। आज तक ये था सबको खत्म कर देना। इतने प्रवचन सुनने के बाद विनती भगवान को करती हूँ, भगवान पूरे परिवार को, सभी के परिवार को सुखी कर देना और हमें समाधि देते रहना। आपकी मेंटालिटी क्या? मिशन लो, विजन लो। आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। नहीं ऐसी बात ऐसे ही जाने मत दो, कुछ क्लियर कर दो कि गुरुदेव अब तक नहीं है। क्या विक्रम? अब जिंदगी मतलब डिफिकल्ट क्यों बोलते हो? नहीं ये हाँ? रस्ता बताऊं? જ્યારે પણ આવું રિએક્શન આવે 1 લાખ રૂપિયા મને મોકલી આપજે। કેમ? હવે રિએક્શન આવે તો કહેજે। बरसों पहले मैं कलोल गया था, कलोल, और प्रवचन के बाद एक लड़का मेरे पास आया। उसने बोला गुरुदेव एक बड़ी जीवन की कमजोरी की बात करना चाहता हूँ। बोल। गुरुदेव वाइन बहुत कमजोरी है मेरी, 2000 के साल की बात, 25 साल की बात। मैं बोला रोज पीता है? नहीं रोज नहीं,
गुरुदेव कभी ऊटी, कभी माथेरान, महाबलेश्वर, पनवेल जाता हूँ मित्रों के साथ, तब पी लेता हूँ। वो दिक्कत क्या है? दिक्कत गुरुदेव और कुछ नहीं है, पीने में दिक्कत नहीं है, मगर मेरी पत्नी और मेरे बेटे के हृदय में मैं बहुत आदर्श पिता हूँ और आदर्श पति हूँ। मेरी पत्नी मानती है कि मैं बहुत अच्छा पति हूँ इनका। मेरा बेटा मानता है आइडियल माय फादर, इसके जैसे पप्पा कोई नहीं। और गुरुदेव कभी ना कभी किसी को भी वाया पता चल गया, बेटे को पता चला मेरे पापा पीते, मेरी पत्नी को पता चला, तब इसके हृदय में मेरी छवि खत्म हो जाएगी। गुरुदेव मैं छवि बचाना चाहता हूं, और कभी ना कभी कोई रास्ता दो। मैं गुरुदेव रोज कभी नहीं वहीं पीता हूं मित्र के आग्रह से। मैंने बोला निश्चित छोड़ना है गुरुदेव, इसलिए तो आपके पास आया। आपने मुझे पूछा भी नहीं। मेरे जीवन की कमजोरी को आपको बताने में खुद जानबूझ के बताना चाहता हूँ, गुरुदेव कुछ करो, छोड़ा दो। तब इनको मैंने पूछा था कि आर्थिक स्थिति कैसी, वो विचार में पड़ गया। गुरुदेव दारू छोड़ने में आर्थिक स्थिति, मैं बोला कैसी? टॉप। गुरुदेव आप नहीं सोचो इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति है। तब मैंने उनको तुझे बोला ना, वो बोला था एक बोतल का 1 लाख रुपया मुझे भेज देना, 2000 के साल की बात। मुझे कि 1 लाख? मैं तो तू बोला ना आर्थिक स्थिति अच्छी है। 2 मिनट राह देख के बैठा और नियम दे दिया, गुरुदेव जब भी पिया, एक घूंट भी पिया, 1 लाख रुपया आपके नाम। और बताओ अतुल क्या किया? इतना बोलने के बाद मैंने तेरा एड्रेस तो दे। समझाई क्यों ने? सूसने माटे लगभग 10 वर्ष ने पत्र लखू છું લાગ ક્યારે મોકલે મને કે આવતા જન્મમાં વિક્રમ દારૂ ગયો, 1 લાખ રૂપિયામાં દારૂ જિંદગી પર ગયો। जिसको भी लगता है मेरे जिल में नहीं जाता, बस इनको बोलता हूँ बस पेनल्टी देते चलो। साच बोलो प्रमोद भाई, एकाद नियम एवं आपू, घी बंद करो ने तो मीठू बंद करो, तबे तो नक्की करो। मोंघू शू है? घी छूटे के मीठू छूटे? परसों मैंने सौराष्ट्र में था, एक लड़का मुझे मिलने के रहा था, मन से छरी परिसंग निकालना है, क्या मालूम मंत्र ही क्या आता है। मैंने बोला सच में गुरुदेव, दिल से 12 बार मुहूर्त निकला ही नहीं, कुछ भी। मैं बोला चाय पीता है? पीता हूं। मैं बोला एक काम कर, कैसे पीता है? एकदम गर्म। बोले एक काम, 7 दिन तक चाय ठंडी पीना। बोला चाय छोड़ दो। मैंने छोड़ना नहीं, पीना मगर ठंडी, छोड़ देना नहीं है, पीना है मगर बिल्कुल फ्रिज में से जैसे बाहर निकल रखना नहीं, बिल्कुल ठंडी करके पीना। તમે હું માનો છઠ્ઠે દિવસે મુહૂર્ત કાઢી ગયો, મારી જ નિસરામાં સંગ નીકળ્યો। મને કે આ ઠંડી ચાય કમાલ કરી કાઢી। नंबर 1 मिशन, नंबर 2 विजन, नंबर 3 डिसीजन। हर हालत में गुरुदेव प्रेम को टिकाए रखो। दिस इज माय डिसीजन, फाइनल डिसीजन। टेम्परेचर गिराने का मन होगा मगर मेरा थर्ड डिसीजन है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रेम को इंप्लीमेंट किए बिना नहीं रहूंगा। माय डिसीजन। सामने वाले ने उसने क्या क्या नहीं, दिस इज माय थर्ड डिसीजन, निर्णय करके बैठा हूं। अहमदाबाद का एक लड़का है, नाम इनका है सुकेतु, आएगा शिविर में, बहुत आनंद आया मुझे। गुरुदेव मेरी फैक्ट्री में, मेरी ऑफिस में काम करने वाले करीबन 70 to 100, यहाँ बैठने वाला कोई भी मर्द का बच्चा हो, ऐसा डिसीजन तुमने लिया हो तो मुझे बता देना।
70 से लेकर के 100 लोग मेरे वहां काम करते गुरुदेव। अब तक गुरुदेव जब से शुरू किया तब तक मेरा डिसीजन है, जो भी लड़का माँ बाप के साथ रहता होगा उसको ही मेरे घर में नौकरी रखूंगा। अपने पेरेंट्स के साथ जो नहीं रहता वो चाहे कितना भी क्वालिफिकेशन लेके आया है, मेरे वहां नहीं रहेगा। और आज तक गुरुदेव बहुत जम के चल रहा है। सैलरी आई कैन गिव मोर। महाराजा कुमारपाल के पैर पे मकोड़ा चढ़ गया था, मालूम है ना? क्या किया था मालूम है? फिर क्या किया? मकोड़े को उतारने का नहीं, पहले क्या किया था? उतारने का प्रयास। हर संभव मकोड़े को बचाने का प्रयास करने के बावजूद मकोड़ा बचे ऐसी स्थिति नहीं दिखी, तो कुमारपाल महाराजा ने क्या किया? चामड़ी काट दी। डिसीजन था, मकोड़े को बचाऊंगा ही, चाहे चामड़ी कटवानी पड़े तो काट दूंगा, मगर मकोड़े को तो 100% बचाऊंगा। एक मिशन, विजन एंड डिसीजन। चलो एक बात बताऊं, बहुत बहुत अतुल नीचे उतरता हूं। मेरे जो उपकारी है, उपकारी, उत्तम भी नहीं, उत्तम भी नहीं, मेरे उपकारी की कैटेगरी में जो भी आता है उनको तो मैं गुरुदेव डिसीजन माई उनसे मैं प्यार ही करूंगा। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे गुरु भगवान जो भी है, यदि उन पर मेरा प्रेम है और उसका मेरे पर उपकार है, चाहे कोई भी प्रतिक्रिया उनसे आएगी, आई विल लव हिम। मुझे कहीं तो हाथ रखने दो तुम। नवसारी के प्रवचन में मैं प्रवचन करके ऊपर आया, आदिनाथ में एक लड़का मेरे पास आया, गुरुदेव मेरे माँ बाप छोड़ के गए राजस्थान, रो रहा था। मैंने बोला क्यों? गुरुदेव मेरी पत्नी ने तो बहुत समझाया कि मम्मी के स्वभाव को चेंज करने की बात करो, तो आई विल एक्सेप्ट इट। नहीं माँ तेरे साथ ऐसा व्यवहार, गुरुदेव मेरी पत्नी ने मुझे बहुत रोका था, मगर माँ ने बोल दिया बेटा तू रोज रोज मेरे से झंझट करता मैं जाती हूँ। गुरुदेव आज का प्रवचन सुन लिया, मेरी जिंदगी में विक्रम ऐसा लड़का नहीं देखा, नहीं देखा, मैंने खुद ने रोका था। अब गुरुदेव प्रवचन का मैं सीधा आपके पास आया हूँ। मेरे माँ बाप राजस्थान गए 4 साल से, कौन से बात होती है पप्पा कब आते हो? नहीं आना ही नहीं है गुरुदेव। आज प्रवचन सुन लिया, आज अभिग्रह लेने के लिए आया हूँ गुरुदेव। माँ बाप को राजस्थान से यहां से सीधा राजस्थान चला जाता हूँ, घर पे भी नहीं। और यदि माँ बाप जब तक वापिस नहीं आए तब तक 24 उपास। मैंने उनको बहुत समझाया, दोस्त आएंगे माँ बाप, फोन कर दे जो को भी, गुरुदेव नहीं आज आज फाइनल, चाहे मेरे मौत हो जाए, नहीं क्यों आए। मेरी पत्नी ने हाँ बोला था, फिर भी मेरी बदमाशी से मेरे माँ बाप चले गए तो मुझे ही कम बैक करना पड़ेगा। दिस इज माई डिसीजन गुरुदेव। आप नियम दो या न दो, 24 प्रवचन में दिया था तब पचकान लेके आया हूं। और जब तक माँ बाप को आपके चरण में ला करके न रखूं तब तक पानी नहीं पीऊंगा। 24 मेरी आंख में आंसू थे। समझाने का हर संभव प्रयास करने के बाद ही वो नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। नहीं बहुत हो गया गुरुदेव, चाहे मौत आ जाए। जिस मां से जन्म लिया उस मां को मैंने ये और गया। और 5वें दिन मेरे सामने आया, गुरुदेव आज पालना है मां के हाथ से। सिर्फ इतना तो करो कि गुरुदेव जिसका उपकार मेरे पर, इनको तो मैं प्यार ही करूंगा। मेरे पति ने मुझे जिंदगी भर संभाला है, मेरे पिताजी ने संभाला है, मेरी मां ने मुझे जन्म दिया है गुरुदेव, इनके प्रति भी द्वेष। वो भगवान थोड़े, वो भी तो मेरे जैसे छदमस्त। गलती उनसे भी होती है, मेरे से भी होती है, माफ कर दूंगा। चलो कोर्ट में चलो, डाबो ले लो, क्या 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 मजाक मानी है तुमने रिलेशन को। तुम एक एड्रेस तो दे दो कि गुरुदेव जहां मैं प्यार करूंगा, एक एड्रेस ओनली गुरुदेव आप पर।
आपके लिए मैं भी तो गलत डिसीजन ले सकता हूं, मेरी मर्यादा के हिसाब से। गुरुदेव चाहे आप मेरे लिए खुद भी गलत डिसीजन लो, आई विल लव यू, आई शैल लव यू। महाराजा कुमारपाल ने मकोड़ा को बचाने के लिए चामड़ी काटी, डिसीजन था। धर्मरुचि अणकार ने चींटी को बचाने के लिए मांस खमक के पाने सब्जी खाकर के जीवन समाप्त कर दिया। मैं वो कैटेगरी तक जाना नहीं चाहता हूं कि धर्मरुचि अणकार की ताकत मेरे पास आ जाए, मेरे बाप की, मेरे माँ की, मेरे पति की, मेरे बेटे की, बेटी की भी नहीं आएगी। मैं इनको भी माफ करने के मूड में नहीं हूं। आप दो बात मुझे बता दो, यहां बैठने वाले को दो काम कहना चाहता हूं। जिस व्यक्ति ने अपने नाम के पीछे आपका एड्रेस रखा है, यहाँ बैठे वाली माता बहन बताने एक सूचना, જે વ્યક્તિએ પોતાના નામની પાછળ તમારું નામ મૂક્યું છે અને તમે પોતે તમારા નામ પાછળ જેનું નામ મૂક્યું છે એને કાયમ પ્રેમ જ કરશો, આટલું કહી દો। ફરીવાર કહી દઉં, જે વ્યક્તિએ પોતાના નામ પાછળ તમારું નામ આપ્યું છે અને તમે પોતે તમારા નામની પાછળ જેને નામ આપ્યું છે, ગુરુદેવ બેને કાયમ માટે પ્રેમ કરીશ। મારા શિષ્ય એને પોતાના નામ પાછળ મારું નામ આપ્યું છે, મારે એને પ્રેમ જ કરવાનો છે અને મેં મારા નામ પાછળ ગુરુદેવનું નામ આપ્યું છે, મારે એમની પાછળ પાગલ જ બનવાનું, ધેટ્સ ઓલ। એક લગ્ન કરીને આવનારી સ્ત્રી પોતાના નામની પાછળ પોતાના પિતાજીનું નામ કે આવડું મોટું બલિદાન પોતાના પતિનું નામ મૂકી દે। एक माँ का बलिदान तुमने देखा है, बेटे को जन्म देने के बाद खुद का नाम बेटे के पीछे नहीं लगाती है और शादी करने के बाद खुद के पीछे पिता का नाम नहीं लगाती। क्या बलिदान! 9 महीना बेटे को पेट में रखने के बाद जन्म वो देती है मगर खुद का नाम पीछे नहीं लगाती है। और 15-20 साल जिस माँ बाप के घर पे रह के वो आती है उसी टाइम पिताजी का नाम रिजेक्ट करके, ये ताकत, इतना ज्यादा बलिदान। तुम किसको प्रेम ही नहीं करते, सब सौदाबाजी। नंबर 1 मिशन, नंबर 2 विजन, नंबर 3 डिसीजन, नंबर 4 डायवर्सन। डायवर्सन व्हाट मीन डायवर्जन? हाँ, थोड़ा मान लो अभी तक सीधे रास्ते पे हम जा रहे थे, गुरुदेव पहली बार आज प्रवचन में सुना कि नहीं अभी 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 डायवर्जन लेना पड़ेगा। बहुत कुछ ही रास्ते पे गए, खड्डा आया, मार खाया, एक्सीडेंट हुआ, नाउ डायवर्जन। अब तक गुरुदेव प्रेम नहीं किया था, अब डायवर लेंगे। आज से गुरुदेव पक्का। ऐसा कोई बदलाव लाना नहीं चाहते तो क्या करेंगे? वर्षों पहले मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मेरी खुद की बात करना चाहता हूं। यहां बैठने वाले सभी सभी, चाहे पिताजी हो, दादा हो, बेटा हो, लड़की हो, लड़का हो, पत्नी हो, सास हो, बहू हो, एक काम थोड़ा करो हो सके तो। आपके जन्म हुआ ना तब आपके माता और पिता ने चाहे शक्कर, पेंडा जो भी है, मगर जन्म होने के बाद आपके पिताजी माँ ने आपको देख करके कुछ अरमान किए होंगे कि आने वाले दिनों में ये बनेगा, राइट?
आप एक काम करो, यदि आपके मम्मी पापा जीवंत है, यहां बैठने वाली लड़कियों को कहना चाहो, बहू बन के आप कभी भी किसके घर में आए तो घर में भी आपके लिए एक अरमान होते, चाहे ससुर का, चाहे सास का, चाहे पति का, एक नया मेंबर आप बन के गए हो, एक अरमान होंगे, इस घर ऐसा बनेगा। आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल नहीं, आपको एक लेसन देना चाहता हूं। आपके मम्मी पापा सास ससुर जिसके भी परिवार में गए हो, वहां एक बार पूछो, इस दुनिया में आने के बाद मेरे लिए आपका जो अरमान था, वो अरमान पे मैं खरा उतरा हूं कि नीचे गया हूं, बस इतना पूछो। 6 महीने के पहले अहमदाबाद के गोल्डेज आश्रम में मैं बना हुआ प्रसंग कहता हूँ। 6 महीने के पहले अहमदाबाद के ओल्डेज आश्रम में एक घर में बेटे का जन्म हुआ, तब शक्कर बाटी, शक्कर ओल्डेज आश्रम में हर वृद्ध पुरुष ने शक्कर वापिस भेजी, इसलिए कि हमारे वहाँ बेटे का जन्म हुआ, तब हमने भी शक्कर बाटी दी। आज हम यहाँ बैठे, शक्कर नहीं लेने आपकी। क्यारे पूछ्યું તમારી મમ્મીને, મમ્મી મારો જન્મ થયો ત્યારે મને જોઈને તારા મનમાં કંઈક અરમાન તો છે ને? ક્યારેક તમારા પિતાજીને પૂછ્યું, પપ્પા મારા માટે શું વિચાર્યું હતું તમે? 15, 17, 18, 20 વર્ષની ઉંમર પછી આપને લાગે છે કે આપના અરમાન આગળ હું ખરો ઉતર્યો? 2023 की साल में मेरी दीक्षा हुई, तब निश्चित 19 साल की उम्र थी। पब्लिक के बीच में रजोरण लेके मैंने नृत्य भी तो किया था, मगर कभी ना कभी दीक्षा जी ने 15-20 साल के बाद भी जब ये विजन आया, तब फ्री बैठते थे गुरुदेव, तो गुरुदेव के बाद जाकर के पूछा था, गुरुदेव 2 मिनट लिखना बंद करो, आई वुड लाइक टू क्वेश्चन टू यू। बोल क्या है? गुरुदेव में जब मुमुक्षु था, तब 2 साल आपके बाद मुमुक्षु की तरह रहा और चारित्र लिया, इस कपड़ा पहना, तब मेरे लिए भी आपके मन में कोई भी तो अरमान हो गया, गुरुदेव क्या था मैं नहीं पूछना चाहता, बस इतना बता दो, मेरे लिए आपने जो अरमान सजे थे वो अरमान के करीब गया, ऐसा आपको लगता है क्या? और गुरुदेव का 2 हाथ सर पे था, रत्नदेव सोचा था उससे कई गुना आगे निकल गया था। यह है मेरी ताकत। एक एड्रेस नहीं मिलता तुम्हारी माँ का, बाप का, पति का, बेटे का, बेटी का, सास का, ससुर का, गुरु का, नोबन। कोई डायवर्जन नहीं, बस जिस गति से तुम्हारी गाड़ी खड्डे में जाती है, तेरे माँ हो तो माँ, बाप हो तो बाप, गुरुदेव दिखा दूंगा कोर्ट में जाकर के बाप कौन है। यदि इतने साल के बाद लगता है कि गुरुदेव ड्राइवर से लेना पड़ेगा, मिशन नहीं था, विजन नहीं था, डिसीजन था, मगर एक अच्छी बात आपने बताई, यू कैन टेक डायवर्जन। और डायवर्जन लेने के लिए, जिंदगी भर के लिए आपके पास चॉइस, चांस, सब कुछ है, सब कुछ। ईगो को छोड़ दो, चाहो एक बार माँ पिताजी के चरण में जाकर के बोल दो, पप्पा माफ कर दो। मन में कभी कभी आपको लगता होगा, मैं एक बात बताना चाहता हूं आज आपको सबको, आपके परिवार में प्रेम बचेगा तो साधु संस्था में प्रेम बचेगा। हमारे साधु संस्था में जो भी एडमिट होते हैं वो आपके परिवार से ही तो होते हैं। मैं मेरी बात बताऊं, मैं 19 साल में दीक्षा ली, मगर मुझे कभी याद नहीं आया कि मैं मेरे पिताजी के खिलाफ कभी कोई जवाब दिया, नेवर।
जब दीक्षा की बात नहीं थी तब की बात करना चाहता हूँ। मेरी मेंटालिटी ऐसी नहीं थी। मेरे बड़े भाई थे, मेरे पिताजी थे, मेरी माँ शांत हो गई थी, भाभी के हाथ से बड़ा हुआ। मैं गलत था सही था नहीं, कभी मैंने जवाब दिया ही नहीं। और ये ताकत मुनिजन में बहुत काम लग गई। You can give me answer for your feminist attitude? आप बता पाएंगे आपके परिवार की व्यवस्था प्रेम की क्या है? मैं मेरे मुनि जीवन की बात करना चाहता हूं। हमारी संस्था की सुरक्षा आपके परिवार में है। सब शांत क्यों बैठे, समझ में नहीं आता है। नहीं मजाक नहीं, हाँ बोलो। हैं? साबिती नहीं, हम बचे हुए नहीं, साबिती हूं नहीं। जेने जवाब આપે બીજો વોટ ઇઝ પ્રૂફ? नहीं मैं હજી સુધી ટક્યો છે વિચાર। नहीं बोलो ने, તમે ટક્યો છે। एक छोकरीએ पूछा तेरा पति ने कि मैं समझ नहीं पाती हूँ कि आपने मुझे, पति ने बोला शांति रख, क्या पूछना क्या है? पति ने पूछा जानबूझ के कि मेरे में ऐसा कोई गट्स नहीं है, रूप नहीं है, फिर भी तूने मुझे कैसे पसंद कर लिया? तब वो पत्नी ने बोला, ये कोरोना की बात है नहीं इसलिए बता रहा हूं। उसने बोला कोरोना के समय में मैं 6ठी मंजिल पे रहती थी, तुम 4थी पे रहता था, અને 4થી મંજિલે બાલ્કની તમે જોયું, તમે પોતું મારતા હતા, ત્યારથી લાગ્યું આ કોરોના પછી પ્રેમ વધી ગયો। બધો ઘરનું કામ કરતા, તમને જે પોતું મારતા હતા, વાસણ મારતા હતા, ઝાડુ લાગ્યું આ ઠીક છે। क्या कोरोना की राह देखते हो? मिशन, विजन, डिसीजन, डायवर्जन, और 5वें नंबर की सबसे बड़ी बात एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। आपको लगता है गुरुदेव का मेरे पर प्यार है, गुरुदेव को चाह के बोलो गुरुदेव मैं धन्य हो गया, अब मैं जू से आया। लोग क्या सोचते, कमाल की बात, आनंद आ गया। हमारा विहार था, कभी कभार एक भाई प्रवचन में थे, कभी कभार इनका नाम मुझे पता था। ₹2.5 लाख लेकर के आया विक्रम। पद्म सुंदर के पास गया, गुरुदेव ₹2.5 लाख मुझे देना है, कहा दो? और सीट पूछा 2.5 लाख क्यों? तब उसने इतना ही कहा कि हजारों लोग प्रवचन में होने के बावजूद, गुरुदेव के भी हजारों भक्त होने के बावजूद, करीबन 4 महीने के दौरान मैं जब भी प्रवचन में आया और गुरुदेव ने इतनी बार मेरा नाम लिया, ये नाम लेने की खुशहाली में 2.5 लाख का डोनेशन। एक्सप्रेशन। साच बोलो, તમે ક્યારે પણ ગુરુદેવ આગળ આવીને કીધું ખરું, સાહેબ આપનો ખૂબ આભાર, અમારી ઉપર આટલો ઉપકાર? ક્યારેય પિતાજીને કીધું પપ્પા ખૂબ આભાર? ક્યારે મમ્મીને કીધું મમ્મી ખૂબ આભાર? મોતનો ખતરો હોવા છતાં તે ડિલિવરી કરી જાનના જોખમે મમ્મી એ વખતે તું મમ્મી બહુ આભાર। તમે કોનો આભાર કોણ માનો? एक्सप्रेशन लाओ।
मेरा बारडोली में चातुर्मास हुआ। बड़ौदा आए थे बारडोली का संघ, और बड़ौदा में बारडोली के संघ के चातुर्मास का जयकारा बुलाया और ट्रस्टी लोग गए। तब प्रमोद भाई बारडोली स्टेशन पे बड़ौदा के बारडोली के ट्रस्टी का सामैया था। कौन? 1.5 घंटा सामैया चला, ट्रस्टियों को कंधे पे लेके संघ नाचा। ये गुरुदेव का चातुर्मास, कमाल कमाल कमाल। और एक नॉन जैन था रमेश भाई माली। एक लड़का इनके पास जाके कहा, रमेश भाई गुरुदेव नु चातुर्मास अपने तने साचे? हाँ साचे। 11,000 रुपया काढ़ी आप्या વધામણીના। મને ખાલી એટલું બોલો, તમે આખા દિવસમાં આભાર કોણ માનો? પ્રેમ। ડ્રાઈવરનો, નોકરનો, વોચમેનનો, કોણ પૂજારીનો કોણ આભાર કોણ માનો? પ્રગટ રૂપે તમે કોને કીધું યાર કમાલ કરી, કમાલ કરી। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं, हम इतने भिखारी, इतने इतने बदमाश बन गए, सभी का उपकार लेना, किसको जबान से बेशब्द नहीं बोलना। दीपचंद गार्डी मुझे मिले थे 2007, 8, 9, 6, 7, 8, 9 में था दिल्ली में। अब दीपचंद भाई को मैंने पूछा था, दीपचंद में बोलते थे तो मैं कागज लेके बैठा, दीपचंद में थोड़ी देर मुझे लिखने दो यार, कमाल। और मैं बोला आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा है, 93, 94 वो टाइम थे, लकड़ी नहीं, चश्मा नहीं, सब चलते रहे। मैं बोला दीपचंद भाई ये ताकत कहाँ से है? गुरुदेव ताकत तो ठीक है, शाखा विधि का उदय, मगर निमित्त बोलो तो गुरुदेव चौका, चौका है ना रसोई, मारो रसोई बहुत सारो है। ये रसोई एवी बनावे जेने सरस के गुरुदेव यहाँ સુધી પહોંચ્યો। હવે સાંભળો, अब गुरुदेव इतने अच्छे स्वास्थ्य, कभी ना दवाई लेनी पड़े ना कुछ। और एक दिन मैंने वो चौका चलाना रसोईया को इतना ही कहा कि यहां तक पहुंचा दिया तूने मुझे इस समय में, जहां 22-24 साल के भी मर जाते हैं, वहां इतना हेल्दी 93 अबाउट, तेरी इच्छा क्या है? अब गुरुदेव क्या बताऊं, मैं महान था कि रसोईया मानता। गुरुदेव रसोईया ने इतना बता दिया कि सेठ यदि मेरे रसोई से आप खुश हो तो मैं चाहता हूं कि मेरे नाम से मेरे गांव में एक स्कूल हो जाए। किसने मांगा? और मुझे दे दो नहीं, मेरे नाम से गांव में एक स्कूल हो जाए बस। सेठ यदि आप चाहते हो कि मेरे से आप खुश हो, मेरी रसोई से, बस इतना चाहिए। और गुरुदेव आपने आनंद थशे। आ 2007 ની વાત એટલે કેટલા વર્ષ અત્યારે? 18 વર્ષ। એટલે એમની પણ પહેલાની વાત, અને એમને મને કરેલી વાત, સાહેબ રસોઈયાના કારણે તબિયત એટલી સારી રહી, નિમિત્ત બન્યો રસોઈયો ભલે, પણ મને એમ લાગ્યું કે આનું બહુમાન, અને એને પણ જે માગ્યું કમાલ માગી સાહેબ, એના નામે 1 કરોડ રૂપિયાની સ્કૂલ બનાવી, અને ઉદ્ઘાટનમાં એના હાથે ઉદ્ઘાટન દીપચંદ ગાર્ડી પાછળ ઉભો હતો। કોઈનો આભાર માનવાનો નહીં, ના ભગવાનનો, ના ગુરુનો, કોઈ નો નહીં, બસ બધાના ઉપકાર લેતા રહેવાના, સ્વાર્થી બનીને રવાના। ચાલો, ત્રણ દિવસ કોના કારણે આવવાનું બન્યું? बराबर। मैं ये नहीं कहना, सच बोलो, जिनके परिवार ने ये प्रसंग का आयोजन किया उनके हिसाब से इनका आभार कितने लोगों ने माना कि तुम्हारे हिसाब से मंगलकारी प्रसंग के हिसाब से गुरुदेव आए, धन्य बन गए। नाम सब ठीक लगी वो नहीं, इनको इंडिविजुअल फोन करके तुमने कितनी बार धन्यवाद दिया। दोस्त कमाल, ऐसा आयोजन नहीं होता, गुरुदेव नहीं आते। मेरा बाईपास का ऑपरेशन भट्टाचार्य जी ने किया 15 साल पहले। मैं जब भी मौका मिलता हूं उनका आभार मानता हूं कि मेरा प्रवचन चलता है, आपने वो टाइम अच्छा ऑपरेशन किया था। किसका भी आभार नहीं मानता।
ભવે ભવે તુમ ચલણ. ફરી વાર કહી દઉં, આવતા જન્મમાં ભગવાન તો જ મળશે, આ જન્મમાં પ્રેમ કરશો તો. મિશન, વિઝન, ડિસિઝન, ડાયવર્ઝન એન્ડ એક્સપ્રેશન. ક્યારેક તો ખરો, ક્યારેક. लास्ट बात, वांकानेर के बाजू में सरा गांव है, सरा. कोई सौराष्ट्र वाला होगा तो इनको पता होगा. मेरे पिताजी मानस डोली में थे. त्र्यंबकेश्वर आता डोली वाला, और डोली उठाने का टाइम हो गया. उसी टाइम एक आदमी दौड़ते दौड़ते आया और डोली वाले के पैर में गिर गया. जब पैर में गिर गया तो मैंने कहा, दोस्त माना सब ये है, किसके चरण में झुकता है, ये तो डोली उठाता है. मारा बापूजी मारा सब था. मैंने कहा, मारा सोच के इनके पैर में गिरता हूं. मैं बोला, मगर ये तो उठाता है. अभी मैं पूछूं इनके, पहले डोली वाले के कंधे पे उसने हाथ रख के जो कहा ना, आज मैं आपको एक्सप्रेशन डोली वाले के कंधे पे हाथ रख के उसने इतना कहा, दोस्त बोझ तो मैं भी उठाता हूं, बोझ तो तू भी उठाता है. मैं मजदूर हूं, पत्थर उठाता हूं, तो खुद भगवान को उठाता है. क्या तेरा नसीब है, बोझ उठाना कम नहीं है, परमात्मा को उठाने का तुझे मौका मिलता है. मेरी आंख में आंसू थे. પૈસાની કૃપણતા ચાલશે, પ્રેમની અભિવ્યક્તિની કૃપણતા કેમ ચાલશે? इंदौर में चातुर्मास करके आया ना, तो मुस्लिम परिवार जैनों के पास गया. मुस्लिम लोग और ट्रस्ट मंडल को इतना कहा कि गुरुदेव का प्रवचन जहां चलने वाला है वहां पेंडाल बनने वाला है, और पेंडाल के भूमि पूजन में यदि हमारा पैसा नहीं लिया, पेंडाल बना नहीं देंगे. किसने कहा? और उनका पैसा लिया, कुरान की आयत बोले, भूमि पूजन किया, फिर जैनों ने पूजन किया. અને આ પ્રવચનની છેલ્લી વાત કરું, સારા કામની ઉપભૃણા ન કરે, સંકેત ગુમાવે. हाँ, गुमावे. सम्यक दर्शनना अतिचारनी गाथा जेने पण ख्याल हशे, निसंकीय, निकंकीय, निविति गीचा, अमूढ़दित्य, पछी उभवुह એટલે ઉપભૃણા, एक्सप्रेशन. તમે પૂજા સરસ કરી બેટા, તે પૂજા સારી કરી બેટા, જે રાત્રિ ભોજન ત્યાગ કરવું સારું કર્યું. આવી ઉપભૃણા તમે ન કરો. જાણી જોઈને સંકિત ક્યારેક ગુમાવી બેસો. કેવો દુકાળ છે, ઘરમાં પણ કોઈની ઉપભૃણા કોઈ કરતો નથી. બસ બધા જાણે રોજમાં બેઠા જ રીતે. નહીં, બહુ દુઃખ થાય છે. આ ઘર કેવી રીતે ચાલે? એક વાત કહી દઉં, ઈંટ અને ચૂનાથી બને એ મકાન હોય, પ્રેમથી બને ઘર હોય. ઈંટ અને ચૂનાથી બને મકાન, जहां प्रेम हो त्या घर से. ऐसा एक भव्यतम माहौल कल जाने वाला है. भगवान विमलनाथ की भव्यतम प्रतिष्ठा गृह मंदिर में पूरे दिन भर तक भक्ति का नजारा, प्रवचन भी वहां, और भगवान घर में पधारते फिर क्या हो सकता है, इनको लेकर अद्भुत बात कल प्रवचन में, कल का प्रवचन जो स्थल डिक्लेयर किया वहां ही है. 8 जनवरी के दिन
मां सरस्वती की कृपा के हिसाब से लिखते चलता हूं। श्रावक जीवन का कर्तव्य पुत्थय लिहणम। आपको भी श्रुत ज्ञान लिखने का एक सद्भाग्य मिले। आपने वो नजारा देखा नहीं, वो नजारा देखेंगे तब पता चलेगा। बढ़िया जगह आसन, आपके हाथ में पेन, एक मस्त कागज। अभी तक हम जिस माहौल से रीच है वो श्रुत ज्ञान लिखने का मौका। मैं खुद लिखूंगा, आपको लिखवाऊंगा। श्रुत आलेखन 8 जनवरी। सब मटेरियल आपको वहां से मिलेगा। यदि आप इन्वॉल्व होना चाहते हो, हजारों की संख्या में नाम आ रहे हैं, नंबर हो गया। आप भी आना चाहते हो, 200 रुपया में बार आपको कार्ड मिल सकता है। और 10 जनवरी को मैं मैट्रिक पास हूं। 10-12 साल तक दीक्षा जीवन के बाद एक पीसी में मैं लिख नहीं पाता था। गुरुदेव की परम कृपा हुई और लिखना शुरू हुआ। मां सरस्वती की साधना, उपासना, मंगल आशीष आज यहां तक पहुंचा हूं। मैं चाहता हूं, मैंने जो श्री संघ में मां सरस्वती का आयोजन रखा था, पैक नीचे ऊपर कहीं जगह नहीं थी। मंडप में जाना पड़े ऐसी स्थिति थी, हम नहीं गए। करीबन 108 संगीतकार आराधना के लिए आएंगे। उनको भी मैं सरस्वती का मंत्र मेरे मुंह से दूंगा। कीट मां सरस्वती की मूर्ति, इन पर हमारा पूजन। जिस साधना से मैं यहां तक पहुंचा हूं, वो साधना आपके पास भी आ जाए। सद्बुद्धि की प्रतिष्ठा हो, ऐसे मंगल उद्देश्य को लेके 10 जनवरी को श्रुत मां सरस्वती पूजन, इनका भी अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। विद किट, एक पास में 2 लोग बैठ सकेंगे। उनकी भी 500 रुपया की कीमत है। मूर्ति सब आपको घर पे ले जाने का मौका मिलेगा। और मैं खुद मेरे हाथ से, मेरे मुंह से आपको सरस्वती मंत्र दूंगा। 8 जनवरी को 200 रुपया, ये बिजनेस नहीं है। इतना तो खर्च होगा, इससे भी ज्यादा कम ले रहे हैं। मगर आपके घर में मां की प्रतिष्ठा हो और ये बुद्धि हमारी सद्बुद्धि हो जाए, इनके हिसाब से ये दोनों आयोजन का पास आपको बार मिलेंगे। 8 और 10 ऑनलाइन भी बुकिंग है। और कल जैसे बात बताई, आज भी ये हाईलाइट्स ऑफ लाइफ और एक किताब पासवर्ड, 2 पेज भी आपने पढ़ना शुरू किया, निश्चित पूरी बुक पढ़े बिना शायद नहीं रह पाएंगे। यदि आपको चाहिए 100-200 रुपए की कीमत की बुक, आज भी बार 10 रुपया में उपलब्ध है, आप ले पाएंगे। कल ठीक सुबह 9 बजे वहाँ प्रवचन रहेगा। કલ્પતરુ વિએન્ટા P3 માં આવતીકાલે પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતનું પ્રવચન રહેશે. સિદ્ધ ભગવંતોને કર્મબંધ કેમ નથી? હા બોલો, ઉભા ઉભા એક મિનિટ. રાઈટ, શરીર અને મન નથી. સરસ સરસ, બહુ સરસ. શક્તિ આપે એનું નામ પુણ્ય છે, તો શું આપે એનું નામ પ્રેમ છે? પૂછાવી ના નહીં, આ બોલો. રાઈટ. સરસ. વ્યાખ્યાનનો ટોપિક હતો, એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન શું હતું? ભવે ભવે તમારું શાસન મળે એટલે ભવે ભવે શું મળે? હા બોલો. રાઈટ રાઈટ. સરસ.
આજે 5 ટોપિક કીધા, એમાં બીજો અને ચોથો ટોપિક કયો? રાઈટ. ચાલો 5 નામ પાછળથી એક સાથે. એ હા, આંગળી ઊંચી કરવાની. નહીં હમણાં નહીં, તમે આવી ગયા. આંગળી ઊંચી કરવાની, સાહેબ કહેશે એમને બોલવાનું. હા બોલો. હા પાછળ. રાઈટ. બહુ સરસ, બધા વ્યાખ્યાતા થઈ ગયા મારી. બહુ સરસ. આવતીકાલે બરાબર 9 વાગે કલ્પતરુ વેન્ટા P3 માં પાર્કિંગ ફ્રીથીમાં પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતનું પ્રવચન રહેશે અને ત્યારબાદ ત્યાં પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ચાલુ થશે. ગુરુ ભગવંતે આપણને હિત શિક્ષા સુંદર મજાની આપી છે. લાભાર્થી પરિવાર રૂપાબેન, વસંતભાઈ શાહ પરિવારનું એકવાર તાળીના તાલથી અભિવાદન કરીએ ભાગ્યશાળીઓ. અનુમોદેના 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 વારંવાર. બીજું 500 પુસ્તકનું વિમોચન ભારતના માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તે 7 તારીખથી 12 તારીખ જાન્યુઆરી ના એ દિવસોનો સુંદર મજાનો મહોત્સવ અને સરસ્વતી પૂજન વગેરેનું પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતે કહ્યું હતું. પચખાણ સર્વમંગલ મંગલ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્મ. सहज समता धरता गुणो नो लड़का वात्सल्य पल पल देता एवा છે અણગા હવે ગાવી છે એ ગુરુની મહિમા જેના ગાઈ શકું ના ગાય એવી મારી ગુરુમાં પ્રભુ બન્યા છે જેના પ્રાણ એવી મારી ગુરુમાં એ તો